Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 2A, exercise question of Oxford Mathematics, book 3, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 6, the sum of whole number and twice the square of the number is 10. Find the number. To find the number, firstly, we suppose that the number here, let the number is x. We will write here, let the number x. Next, we will write the expression, the sum of whole number and twice the square of number. Twice the square of number mean 2 times of square of number. Look here, this is the number x. The square will be x square. Here, 2 times of x square will be the expression of this statement. Next, the sum of number and square of the number, it become x plus 2x square. And the sum, look here, the sum here is 10. We will write 10. Therefore, we can write that x square, x plus 2x square equal to 10. Now we will arrange this equation. This equation become 2x square plus x, and we shift the 10 from right to left side. It become minus 10 equal to 0. Look here, this is the quadratic equation. We will factorize this equation by midterm breaking method. In the midterm breaking method, firstly, we will write this expression on left side as it is. 2x square is written as it is, plus is written as it is, minus 10 is written as it is, but the middle term we will break. The break of the middle term, how can we break this middle term? Firstly, we will multiply the coefficient of x square to constant. We get 20, and we will take 2 factor of 20. When we subtract, this sign is subtract, we will substitute here. When we subtract, we will get 1. Look here, 5 times 4 is 20. Therefore, these 2 factors we will use to break this 1x. We can write 1x, 5x minus 4x. And now we will solve this. We will solve the equation. Firstly, we will take the common first 2 terms. Look here, the common in the first 2 terms is x, and therefore the 2x square become 2x plus as it is 5x become 5 minus 4x minus 10. The common here is 2 because 4 we can write 2 into 2 and 10 we can write 2 into 5. We will take 2 as a common. Therefore, the remaining value will be 2x and this become 5. But the sign inside the bracket will be changed. Now we can write this 2x plus 5 into x minus 2 because 2x plus 5 is a common in these 2 terms. Look here, this 2x plus 5 in the first term here, and in second term, the 2x plus 5 also present. Therefore, we will take common. This become x 2x plus 5 as a common. The remaining term will be x minus 2 equal to 0. Now we can find the value of x if we take 2x plus 5 equal to 0 or x minus 2 equal to 0. For these values, this equation becomes 0. Therefore, to find the x, we will shift the value 5 from left to right side. It become minus 5, and then x will be equal to minus 5 over 2. We divide 2 on both sides. We get minus 5 over 2. Therefore, x equal to minus 2 1 over 2. Here, the x will be equal to, we should say 2 from left to right side, it become plus 2. Therefore, x equal to 2. Look here, the statement here is the number is whole number. Therefore, the whole number only x equal to 2. This number we will ignore this value. Therefore, we
Right, not possible. The answer is x equal to 2. This is the answer. Question 7. If 4 times the whole number is subtracted from 3 times the square of number, the result is 15 is obtained. Find the number. Firstly, we will suppose that the number is x. Look here. I will write here is the let the number is x. Look here, the number is, if the number is x, then the 4 times the whole number. Look here, the statement is 4 times whole number. This number will be 4x. And next is 3 times, next statement, 3 times square of number. Square of number, look here, the number is x, the square of number is x square. The 3 time will be 3x square. The statement here is a 4 times a whole number is subtracted. This number is subtracted from 3 times of whole number. Therefore, the result will be 3x square minus 4x. The result is 15. Therefore, we will write this result equal to 15. And we can write this equation as 3x square minus 4x. We will shift 15 from right to left side. It become minus 15 equal to 0. अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि सबसे पहले हम इनकी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और जो मिडिल टर्म है इसको हम अभी एम्प्टी छोड़ देते हैं और यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा देंगे. अब आपने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए. तो कैसे ब्रेक करना है? जो x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है. 3 टाइम 15 45 होता है. अब आपने 45 के फैक्टर लेने हैं कि आप जब सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए. तो 45 का फैक्टर 9 टाइम 5 जो 9 टाइम 5 45 है, तो इसलिए 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x लिखेंगे इन रिप्लेस ऑफ 4x. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वेशन ब्रैकेट ओपन की तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0. अब आप नोट करो कि इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x. तो हम यहाँ पर 3x को कॉमन लिख लेंगे और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3x एज अ कॉमन. तो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी? x माइनस 9x में से 3x कॉमन लिया तो 3 3 9, 3 और x कॉमन आ चुका है तो x माइनस 3 हमारे पास वैल्यू रह जाएगी. और यहाँ पर 5x 15 में 5 एज अ कॉमन आ जाएगा और ये x एज इट इज, और ये 5 टाइम 3 15. अब देखिए इसमें x माइनस 3 कॉमन है तो हम यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन लिख लेंगे और ये कॉमन में जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं यानी ये और ये रिप्लेस, ये इसमें से रिमूव हो जाएगा. तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी वो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं. तो x की वैल्यू लेने के लिए हम दोनों फैक्टर में से पहला फैक्टर जो है x माइनस 3 इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लेंगे. तो इनमें से किसी एक फैक्टर या दोनों फैक्टर को 0 लेते हैं तो ये इक्वेशन 0 बन जाती है, इसलिए हमने इसको 0 ले लिया है. तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 और ये वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस 5/3. देखिए हमें कौन सा आंसर चाहिए? होल नंबर में हमें आंसर चाहिए. यहाँ लिखा हुआ है 4 टाइम्स होल नंबर, फाइंड द नंबर. नंबर जो है ये होल नंबर्स में है तो इसलिए हम फ्रैक्शन क्या इग्नोर कर देंगे और x इक्वल टू 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. टू कंसेक्यूटिव positive numbers are such that their sum of their square is 113. Find the two number.
तो यहाँ हम सबसे पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को हम रख लेते हैं, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज x and the second consecutive number will be x plus 1। हम यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x रख लिया और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर x plus 1 ले लिया है। तो अगर जैसे आपके पास ये दो नंबर हैं 7 एंड 8, तो 7 से अगला नंबर कंसेक्यूटिव नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, 7 में 1 प्लस कर देते हैं। तो यही हमने वर्किंग यहाँ पे की है कि अगर फर्स्ट x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1। अब वो कहते हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर, पहले का स्क्वायर x का क्या होगा, x स्क्वायर, और दूसरे कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 स्क्वायर। इसका सम, इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, वो है 113 के। तो ये एक्सप्रेशन भी इक्वल हो जाएगा 113 के। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखें ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, या आप इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आइडेंटिटी मैंने यूज की है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल टू 113 एज इट इज लिख लेंगे। अब ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 113। ये 113 को लेफ्ट, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 112 इक्वल टू 0। अब देखें ये पूरी क्वेश्चन 2 पे डिवाइड हो सकती है, तो डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रह जाएगी 1x, और ये वैल्यू आ जाएगी 56 इक्वल टू 0। अब जैसे हम पहले कर चुके हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम मिडिल वैल्यू को ब्रेक करके लिखते हैं और अदर वैल्यूज हम लिख लेते हैं एज इट इज। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, -56 इक्वल टू 0 एज इट इज, और ये सेंटर की जो मिडिल टर्म है यहाँ पर जो साइन है वो हमने लगाया। अब हमने दो फैक्टर लेने हैं, किसके, 1 मल्टीप्लाई 56 के, कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हम तो 56 आए, और जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 56 आए। देखें 56 के कौन से फैक्टर बनेंगे, 8 टाइम्स 7 कितना होता है, 56 होता है। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो 2 से डिवाइड किया 56 को, फिर 2 से डिवाइड किया 56 को, फिर 2 से किया, तो आप देखें पहला फैक्टर 2 इंटू 28 है, फिर दूसरा 4 इंटू 14 है, और तीसरा फैक्टर जो है वो 2 इंटू 2 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 इंटू 7 है। और आप नोट करो कि हमें कौन सा चाहिए था, ये 8 इंटू 7। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो ये 8x माइनस 7x वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको एक्स ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। और अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन देखना है, तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है इन दोनों में, तो ये हमने लिख लिया एक्स, और ये रिमेनिंग टर्म आ गई एक्स प्लस 8। फिर इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी, एक्स एज इट इज। इनसाइड का साइन, ब्रैकेट में इनसाइड के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया, 7 टाइम 8 56। अगेन ये इसमें एक्स प्लस 8 है, इधर भी एक्स प्लस 8 है, और ये कॉमन लिख लेंगे हम एक्स प्लस 8। तो जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएंगी वो है एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो पहले दो फैक्टर में पहला फैक्टर है एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस 7, और इसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे, जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हम ये वैल्यू लिखते हैं, एक्स की क्या बनेगी -8, और यहाँ पर एक्स की क्या बनेगी 7। देखिए हाँ, आपको चाहिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव। लुक हियर, दिस फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एक्स इज 7, then the second number is x plus 1 will be 7 plus 1 is 8. Therefore,
The two consecutive number will be 7, 8. This is the answer.